whatever the strategy you might use, you might be using SMC, you might be using support and resistance, you would be using like simple trend line, chart pattern, आप कुछ भी use कर लो, candlestick use कर लो, आप like आप कोई भी डेटा यूज कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू कैच द मोमेंटम्स. इफ यू आर समवन हु ट्राइज टू कैच मोमेंटम in stocks, if you are someone who tries to catch momentum in equities, then sorry, but you won't be able to catch the momentum until you fix this issue. What is this issue? What is the thing I'm going to talk about this in particularly in video is about the one issue which like most people ignore. People focus on having a strategy, people focus on having a like proper strategy in the market. If I'll create a video on a strategy, if I'll create a video like is strategy say you can make more money, then people might I might get more views. If you will search on YouTube, when I like basically when I research about for my content that what should be the topic which I should create on, सो बेसिकली आई फाइंड कि काफ़ी जो स्ट्रैटेजीज वीडियो होते हैं, जो क्लिक बेट वीडियोज होते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, दे गेट वेरियस व्यूज बिकॉज पीपल आर लाइक सर्चिंग फॉर दोज काइंड ऑफ वीडियोज. पीपल आर सर्चिंग फॉर स्ट्रैटेजी वीडियोज, जो एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कोई एक एक स्ट्रैटेजी सिर्फ बता दे जिससे हम पैसे कमा सके. बट it won't happen like this, right? You might be using any strategy, you might be using the best strategy in the world, but you won't be able to like make money until you fix this issue. Basically last week I tried like 10% momentum in a single day. I made a video on that. I discussed about that stock in my previous watch list, and in the next week, like on the Monday itself, that stock performed around 10%, 10% momentum in a single day. So many, by looking at that video, many of person from YouTube messaged me on my Instagram about like how do you able to catch these momentums. One person particularly, I won't be like taking his name, I'll like ask my editor to keep the screenshot here. I'll ask him that uh, person came to me on my Instagram, and he messaged me that he's using the strategy, he's having the strategy, but he won't able to capture these trades. What's the reason behind it? He was not sure ki what was the mistake that he was doing. So I asked him, the first question which I asked him was, do you have any proper strategy? And he answered me this that yes, like whatever the strategy I am using, my fake and move strategy, that strategy is similar to that, and he's using it since last 1.5 years. Then I asked him why you won't able to make the money. Then like he was not having any proper answer. What's the mistake that he was doing wrong, right? So when I started asking him some few questions about his strategy, then I asked him around, basically I have six questions notes. I asked to people, or when I was making my strategy, I made sure that until I'll have the answer of all these six questions, I won't say that I have a perfect strategy, because I need to have all the answer of these six questions, then I'll say that I can have a strategy. So same questions I asked to him, and most of the questions, like out of six questions, three questions he could not able to answer. Like he said that no, he don't have an answer for that. Then I say that you say that you have a proper strategy, you say that you have a proper strategy to trade in the market, but do you think like you really have a proper set of strategies? Strategy doesn't mean that you just have entry and exit point, you just know about the market structure, then you just trade in the market. This is not known as strategy. Strategy is completely a set of stock selection rules, entry and exit rules, when you should be taking the trade, when you should not be taking the trade. These all things combines and form a proper strategy, right? So in this video is particularly for you. If you think that you have a proper strategy, and if you have a proper everything, and you can't able to capture the trades, you can't able to make money from the market, then answer these questions. If you have answer of all the six questions which I'm going to ask in this video, then all right, you might be facing some other issue. If you can't able to make money, like it might be your psychology issue or something else. But if you don't have answer of any of the questions which I'm going to ask in this video, then my friend, you have problem in your strategy. Like make the rules, make your strategy perfect, then try to trade in the market. So what are those questions? What are those questions which I made for myself, basically to feel more confident in the market? So the first question which I basically asked and which I made for myself is, whatever the strategy you might be using in the market, right? Do you have a proper logic behind your strategy? For example, what I mean by this question, I'll explain you. For example, if someone feels that from this level, if the stock moves above this level, then he might be expecting a good momentum. So why do you think that a momentum can occur from that level?
I want to know the reasons. I was asking the same questions to myself when some like when in my initial days when everybody was on YouTube or on anywhere else, when I like looked at the video, and then when I look at the people when people used to say कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, then I used to ask a simple question, क्या लॉजिक्स क्या है, क्यों उसके ऊपर जा सकता है, लाइक क्या वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, क्या वहाँ पे सेलर्स डरेंगे, या फिर क्या वहाँ पे क्यों डिमांड क्रिएट होगा बेसिकली जिसके कारण प्राइस ऊपर जाएगा. सो डू यू हैव एनी प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड योर स्ट्रैटेजी, अगर आप उस लेवल के ऊपर बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, सो व्हाट इज द लॉजिक कि वहाँ से बाइंग के लिए डिमांड क्रिएट हो सकता है या फिर सेलिंग्स के लिए वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू माई सेटअप क्यों होता है, क्या रीजंस होता है, दिस ऑल थिंग्स मेरे सेटअप पे क्या लॉजिक्स है मेरे, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, राइट. बट इन दिस वीडियो आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चंस. सो आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट डू यू हैव अ लाइक प्रॉपर लॉजिक क्यों उसके ऊपर मोमेंटम आ सकता है. व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज देखो मार्केट में होता है ना, काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं कि मैं ट्रैप हो गया, मेरा स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर मेरा स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस सिनेरियो में नहीं परफॉर्म कर रहा है. दिस ऑल थिंग्स यू विल फेस अंटिल यू रियलाइज, अंटिल यू नो योर स्ट्रैटेजी. लाइक काफ़ी अच्छे से आप जब तक स्ट्रैटेजी को नहीं जान पाओगे, काफ़ी अच्छे से, व्हाट डू आई मीन, लाइक आपको पता ही जब अगर नहीं रहेगा वहाँ से क्यों मोमेंटम आ रहा है, देन हाउ डू यू एबल टू एनालाइज द मार्केट, हाउ डू यू एबल टू एनालाइज द बिफोर सिचुएशन, जब मार्केट आने वाला है उसके पहले के सिचुएशन से आप कैसे एनालाइज करके डिसीजन ले लोगे. क्योंकि इट्स नॉट लाइक कभी भी ऐसा नहीं होता दैट यू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी एंड एवरी टाइम मार्केट इज गोइंग टू पुट अ सेम सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स नथिंग हैपन लाइक दैट. एवरी टाइम मार्केट इज गोइंग टू गिव यू अ challenge, every time like market is going to put a different scenario in front of you. So you need to decide that either you are going to learn this logic, why the logic is important, or what's the logic behind your strategy, or like you will just feel confused. So this was the first question which you need to ask yourself. So let's move to the second question, that is back tested data. For example, you have assumed that from this level like momentum comes, right? So have you gone through the back test, have you gone through the back test of that strategy for last 5 to 10 years? If you are a swing trader, I'm talking to a swing trader, right? I'm not talking to a intraday trader, I'm not talking to a option buyer seller, I am talking to a swing trader. Have you gone through last 5 to 10 years data? आपको क्या आइडिया है जिस सिचुएशन में आप, जिस मार्केट स्ट्रक्चर में यू आर प्लानिंग कि वहाँ से मोमेंटम आ सकता है, क्या पहले मोमेंटम आया है? इफ़ यस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, लाइक कितने बार मोमेंटम आया है, कितने बार प्रॉफिट आपका हिट हुआ है, कितने बार आपका लॉसेस हिट हुआ है? डू यू हैव द डेटा ऑफ दिस? सो नाउ पीपल विल आस्क क्यों हमें ये ज़रूरी है, राइट? अब यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, आई विल टेल यू. अब लोगों को ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है दैट कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करें, कहाँ पे हम लॉस बुक करें, कहाँ पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कितना मोमेंटम जा सकता है, या फिर मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट और ऊपर चला गया. सो व्हेन यू विल हैव द बैक टेस्टेड डेटा, सो यू विल लाइक इन योर माइंड यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि मार्केट जब भी इस सिनेरियो में ब्रेकआउट देता है, जब भी मुझे एंट्री मिलता है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 13 से 15% का मोमेंटम आता है. इन माई केस, इन योर केस इट माइट बी डिफरेंट. आपके केस में हो सकता है कि उसमें 5 से 6% का सिर्फ मोमेंटम आता हो. सो यू विल हैव अ आइडिया कि इसमें 4 से 5% का मोमेंटम आता है जब भी इस सिनेरियो में मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. सो यू विल बी लाइक फीलिंग लाइक आप इम्पेशेंट ना हो कि आप काफ़ी पेशेंस से मार्केट में वेट करोगे दैट आपके टारगेट तक प्राइस जाए. यू विल हैव एन आइडिया कि कितने बार ऐसा होता है दैट वो 3% तक जाता है, फिर वहाँ से घूम जाता है. सो वेन एवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल अकर, you might be booking your profit early. When this when you will have a proper good setup, then आप wait करोगे अपने target तक का. You will have what do I mean is आप patiently अपने target तक का wait करोगे, right? This was the second question. Now let's move to the third question, which is most important. If you don't have the answer of this, then you can't say that you have a perfect strategy or best strategy. So what is that? लाइक स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ पे बाइंग मिलता है या फिर ब्रेकआउट हो गया, कोई चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट हो गया. स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो अबाउट वेयर डू यू टेक प्रॉपर एंट्री एंड व्हाट इज योर एग्जिट स्ट्रैटेजी. एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी. इट्स अ काइंड ऑफ चैप्टर. एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर पता है बट यू आर नॉट अवेयर कि कहाँ पे एंट्री लेना है. एंट्री मतलब क्या? एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है? देखो, एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है ना, एंट्री
स्ट्रैटेजी क्यों होना आपके पास ज़रूरी है? बिकॉज एंट्री स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं होगा देन लाइक आप रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एंट्री अगर आपको पता नहीं कहाँ पे लेना है देन कभी ऐसा होगा दैट काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कभी ऐसा टाइम आएगा दैट रिवॉर्ड जो होता है ना, यू वुड बी एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग रिवॉर्ड, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, आपके सेटअप पे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता ही नहीं है आपको। सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज द reason you need to have a proper entry and exit strategy in the market. Now the fourth question is, आपने अब चलो डेटा बना लिया, आपने एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर लिया, बट डू यू हैव द फ्रंट डेटा, फ्रंट टेस्ट डेटा, मतलब आपने बैक टेस्टेड डेटा तो आपके पास है दैट आउट ऑफ 100 ट्रेड्स ऐसा ऐसा परफॉर्म करता है, बट व्हाट इज द लाइव मार्केट डेटा? आपने क्या 100 ट्रेड्स जो आगे लिए हैं, सो डू यू हैव द डेटा ऑफ दैट, दैट आगे वाले 100 ट्रेड्स में कौन सा स्टॉक ऐसा परफॉर्म किया है, लाइक कितने स्टॉक्स में प्रॉफिट हुए हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने स्टॉक्स में लॉस हुए हैं, कितने परसेंट का लॉस हुआ है? डू यू हैव द डेटा ऑफ ऑल दिस थिंग्स, फ्रंट एंड डेटा जो आप बोलते हो, फ्रंट लाइक फ्रंट टेस्ट डेटा, मार्केट में लाइव मार्केट में आपने जब ट्रेड लिया उसका डेटा क्या आपको बोल रहा है? सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द फाइव क्वेश्चन, लाइक when you should be out of the market and when you should be in the market. What do I mean by this? When I ask like when you should be out of the market, देखो आपके स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है दैट हर मार्केट सिचुएशन में सेम एक्यूरेसी या फिर सेम रिस्क रिवॉर्ड परफॉर्म करेगा। योर स्ट्रैटेजी माइट बी वर्किंग बेस्ट इन अ करंट मार्केट, और जब भी मार्केट रिवर्स होता है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपकी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं करे। सो दिस माइट बी अ केस। सो जब भी ऐसे लाइक सिनेरियो होता है मार्केट में, आपका जब भी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसको अप ट्रेंड में टेस्ट करो, आप उसको जब डाउन ट्रेंड मार्केट होता है उसमें टेस्ट करो, एंड साइडवेज मार्केट में टेस्ट करो। सो यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया कि जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो मेरी एक्यूरेसी ये होती है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड ये होता है, बट व्हेन मार्केट रिवर्स माई एक्यूरेसी डिक्रीजेज, माई रिस्क रिवॉर्ड डिक्रीजेज। जब साइडवेज होता है तो दिस इज द सिचुएशन जब मुझे ट्रेड नहीं करना है। सो दिस इज द रीजन वाई यू नीड टू हैव द answer of this question. And the last question is when you should be taking the less risk, when you should be taking the more risk. इसका क्या मतलब है? कब आपको क्वांटिटी, आपने सुना होगा दैट अ परफेक्ट ट्रेडर इज नॉट समवन की जिसकी एक्यूरेसी 90% है। परफेक्ट ट्रेडर इज समवन जिसको ये पता है कब मुझे क्वांटिटी ज़्यादा डालना है, कब मुझे क्वांटिटी कम डालना है। अब इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपके पास आगे डेटा नहीं है, जब तक यू डोंट नो कि किस मार्केट सिचुएशन में आपकी स्ट्रेटजी कैसी परफॉर्म करती है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक दैट? सो दैट इज द थिंग. like uh, I asked to myself, I like while making my strategy I asked to myself कि यार when I should be putting my more quantities in the market, when I should be taking the less risk. दिस इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली कि मार्केट ओवरऑल पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है, पिछले ट्रेंड्स में कैसा परफॉर्म किया, मैंने जो आगे ट्रेड्स लिए हैं उसमें कैसा परफॉर्म किया। सो दिस कुड बी द आंसर ऑफ लाइक ऑल दोज, दिस कुड बी आंसर विच आई विल गेट फ्रॉम दोज डेटा. So these were the 1 2 3 4 5 6 questions which I sent to that person, and he said कि no मेरे पास डेटा तो है नहीं, मेरे पास मुझे ये तो पता नहीं है कब मुझे ट्रेड लेना चाहिए कब मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए. एंड द मेन थिंग वाज एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी. ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी काफ़ी चलो लोग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, मार्केट्स लाइक स्ट्रक्चर पता चल जाता है, स्टॉक सिलेक्शन भी कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है ये भी पता चल जाता है, बट दे आर नॉट सो श्योर अबाउट एंट्री एंड एग्जिट, कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है. एंड इफ़ यू विल नॉट हैव अ परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट, कोई भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर लो, बट यू वोंट बी एबल टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन. दिस इज द सिंपल रीजन. एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है दो एक दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे. इवन आई एम वर्किंग स्टिल नाउ, जब भी मैं कोई ट्रेड्स लेता हूँ, इफ आई गेट अ लर्निंग्स, अगर मुझे कुछ उसमें कुछ दिखता है तो आई नोट इट डाउन, आई राइट इट ऑन माई डायरी, एंड आई जस्ट ट्राई टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जब धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहा है, अगर उसमें मार्केट सिचुएशन चेंज हो रहा है, मार्केट इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं हर टाइम वो सेम गलती ना करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर एंट्री थोड़ा चेंज करता हूँ, एग्जिट चेंज करता हूँ. एंड बट द लाइक जो एक चीज़ है जो कंसिस्टेंट रहेगा, दैट इज रिकॉर्डिंग योर डेटा, किस स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस के बाद क्या रिजल्ट है. दिस कुड बी द ओनली थिंग जो एक लॉन्ग टर्म में एक आने आगे लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग मार्केट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, राइट, आप एक प्रॉपर एक बिजनेस जैसा देख रहे हो, सो यू नीड टू हैव डेटा. आप किस स्ट्रैटेजी के ऊपर, किस दाव के ऊपर आप पैसे लगा रहे हो, आपको उसके बारे में पता तो होने चाहिए ना अच्छे से, कब वर्क करता है, कब बेस्ट वर्क करता है, कब नहीं करता है, कब ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, कब कम रिस्क लेना चाहिए. सो दीज आर ऑल द थिंग्स. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video, and this was all for you in this video. Like make sure कि आपकी entry and exit strategy सही हो, and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.